Hello my dear students, how are you all? This is Subrat Pradhan and I welcome you back to today's class. Today we shall start a new chapter and that is tenths and hundreds. So without wasting time, let's start the class. What is the length of the smallest pencil you have used? सबसे छोटा पेंसिल आप कितने साइज का यूज़ किए हैं? इतने साइज का या फिर इससे भी छोटा? एंड कैन यू गेस द लेंथ? क्या आप इसका लेंथ को गेस कर सकते हो इन सेंटीमीटर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्केल. देखिए दिस इज अ स्केल. इफ यू विल मेजर दिस व्हाट विल बी द लेंथ? वी कैन गेस इट माइट बी 3 or 4 or 5 centimeter, but we can't say exactly the length of the pencil without measuring. So let us measure it. I have drawn here, for example, I have drawn here a pencil and a scale. थोड़ा zoom in करके मैं इसको बनाया हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं. This is the pencil and this is a scale. Okay. So here you can find the length of the scale. Here it is centimeter scale. This scale is centimeter scale. So you can see what is the length of the pencil. It starts from here. From 0 it starts and it reaches up to 2 and more than 2. So it is more than 2 centimeter. Then what is the exact length of the pencil? That we will find today. See, it is more than 2. ये 2 से ज़्यादा है and 3 से छोटा है. It is between 2 and 3. तो अगर ऐसे बीच में 2 सेंटीमीटर के अगर बीच में आ रहा है उसका लेंथ, then how can we find out? So my dear students, you see here small lines are there between two big lines. Tenths, you can see it 10 parts. From 2 to 3 you can see, if it is 2 to 3, you see here like a you can see like this. You can see here 10 equal parts are there. If it is 2 and it is 3, in between you can find 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 centimeter is being divided into 10 equal parts. 10 equal parts, and each small part is called 1 millimeter, 1 mm. Okay, each small part is called 1 mm. So you can say how many millimeters are there in 1 centimeter? In 1 centimeter there are 10 millimeters. In short form we write mm, 10 millimeters. So 1 centimeter is 10 millimeter. So you can count the small lines here. How many lines are there? After 2, 1 2 3 4 4 lines are there. So what is the length of the pencil? It is 2 centimeter and 4 millimeter. The length of the pencil is 2 centimeter and 4 millimeter. So my dear students, you see here we will learn something about this, about millimeter and centimeter. यहाँ देखिए पेंसिल का लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर एंड 4 mm हो गया, ठीक है. लेकिन हमने यहाँ सीखा कि 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज 10 mm. तो ये हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? अगर हर एक जो छोटा पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये एक जो mm है दैट इज 1 mm आउट ऑफ 1 सेंटीमीटर, आउट ऑफ 10 mm, राइट. So this one small part is 1/10 of 1 centimeter. 1/10, and we can write it by 1/10 of 1 centimeter. 1/10 of centimeter, or we can write it as 1/10 centimeter. Yes or no? Because ये 1 centimeter का 10 पार्ट अगर डिवाइड करेंगे उसमें से ये एक पार्ट है which is 1 millimeter, 1 mm. So we can write it as 1/10 centimeter. Already in the chapter parts and whole we know about fraction. यहाँ टोटल देखिए 10 पार्ट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पार्ट्स है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. उसमें से अगर हम 1 mm को खाली लेंगे तो उसको हम कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर, और इट इज़ 1 mm ऑल्सो. अगर हम फ्रैक्शन में कहेंगे, ठीक है, 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. एंड we can also write it as 0.1 centimeter. So we can write it as 0.1 centimeter. We read it as 0.1. What does it mean? We read it as 0.1. And if we are writing like this, it is called the decimal fraction.
इसके पहले हम 1/10 दी तो फ्रैक्शन है. दिस इज कॉल्ड डेसिमल्स. दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. देखिए यहाँ पर जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स. ये है होल नंबर, ये है डेसिमल नंबर. एंड हियर द पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. So we can represent 1/10 as 0.1 centimeter, and this is called decimal. Okay, 0.1. And like that, if it is 2 millimeter, what will be the fraction? 2 millimeter is 2 out of 10 centimeter. We know that because 2 millimeter means 2 millimeter out of 10 mm. Okay, अगर 2 हो रहा है तो मतलब ये टोटल 10 में से 2 पार्ट है. So we can write it as 2/10 centimeter. So what will be what is how can we write it in decimal? We can write it as 0.2 centimeter. Like that, if it is 3 mm, we can write it as 0.3 mm, 3 centimeter. If it is 4 mm, then we can write it as 0.4 mm, and like that. So in this way, we can convert a fraction into decimal. ठीक है, हम फ्रैक्शन को इजीली डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर सपोज लिखा गया 5/10 सेंटीमीटर, डेसिमल में क्या होगा? इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर. ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल से वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डेसिमल. और मीटर अगर हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर को यूज़ करके करेंगे तो और भी जल्दी हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सो यहाँ पर अभी लेंथ क्या होगा बताइए. ये जो पेंसिल था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल? एक्चुअली हमने निकला था इट इज 2 सेंटीमीटर एंड 4 mm. अभी हम इसको लिखेंगे. देखिए 4 mm इज 0.4 सेंटीमीटर. 0.4 सेंटीमीटर, 4 mm इज 0.4 सेंटीमीटर. जस्ट नाउ वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट. एंड 2 सेंटीमीटर इट इज ऑलरेडी होल नंबर. 2 सेंटीमीटर तो अपने आप में वो पूरा है, लेकिन 4 mm क्या है? वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेसिमल. तो यहाँ जो जीरो है पॉइंट के लेफ्ट साइड में विल राइट 2. इट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर. इट मीन्स 2 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर. लाइक आई टोल्ड यू हियर, लेफ्ट हैंड साइड है होल नंबर और राइट हैंड साइड है डेसिमल नंबर, जो डेसिमल पॉइंट है. इसीलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा हमें सेंटीमीटर मिल रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो अधूरा हिस्सा मिल रहा है सेंटीमीटर से कम वाला, वो mm से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल राइट इन डेसिमल पार्ट. सो इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 2.4 सेंटीमीटर. यस, नाउ कम टू द पेज. Yes, here you can see here in page number 134, already it is written, we also call 1/10 of a centimeter as 0.1 centimeter. 1/10 of centimeter को हम 0.1 centimeter कहते हैं, और इस तरीके से हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा. द चैप्टर itself is टेंथ्स एंड हंड्रेड्स. व्हाट डू यू मीन बाय टेंथ्स? अभी हम टेंथ्स के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा देख लीजिए टेंथ्स क्या है. टेंथ्स मीन्स, you see here tenths. Tenths mean 1/10. 1/10, 1/10 जिसको आप कहते हैं 1/10, that is called tenths. और 100 का मतलब है 1/100, that is 100. वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी के लिए आप बस tenths का मतलब समझिए, जो कि चैप्टर का नाम है. तो यहाँ जो हम पढ़ रहे थे 1 mm, that is 1/10 सेंटीमीटर. We can call it tenths centimeter, tenths. Okay, it is 1/10. Yes. Now come to the next page, that is 135. You see, what is the length of this pencil? mm में क्या होगा? मिलीमीटर में length of the pencil क्या है? देखिए वहाँ पर the pencil is very small one. You see here, that is it started from, देखिए वहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है. देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है एंड ख़त्म कहाँ हो रहा है. देखिए वो ये अगर 2 है, बीच में उसका मिडिल का है जो कि आधा हाफ सेंटीमीटर है, वहाँ देखिए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा गया. तो लेंथ देखिए उसका क्या है,
और जो पेंसिल है उसका ये ड्रॉ किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है, ये बीच का है उससे एक आगे, यानी अप टू हियर, अप टू यहाँ तक देखिए आया है। ये स्टार्ट हुआ है 1 से, नॉट फ्रॉम 0। तो आपको बस ये काउंट करना है कितने स्मॉल लाइन से। देखिए ये 1 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है, 2 यहाँ पर है, यहाँ से अगर पूरा यहाँ होता तो ये 1 होता, ये लेस देन 1 है। सो हाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? 1 2 3 4 5 6। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 6 millimeter and in decimal it will be 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर से कम है। याद रखना बच्चों, जब यहाँ तब तक 1 नहीं आएगा जब तक ये होल नंबर नहीं बन जाता। ये 0 इसीलिए है क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, जब ये 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm से ज़्यादा हो जाएगा तब जाके यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, वरना यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर द लेंथ ऑफ द पेंसिल इन सेंटीमीटर इज 0.6 सेंटीमीटर एंड mm में अगर बोलेंगे तो ये 6 mm होगा। ठीक है, अब चलते हैं अबाउट फ्रॉक्स। देखिए वहाँ पर है, हैव यू सीन फ्रॉक्स? वेयर? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन? ऑल द फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ? हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखिए आप जितने भी देखिए मेढक, क्या वो सब सेम लेंथ होते हैं, सेम साइज के होते हैं? नो, ऑब्वियसली नो। बहुत तरह तरह के फ्रॉक्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, सो हियर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स आर बीन गिवन हियर। वन इज गोल्ड फ्रॉक्स एंड अनदर इज बुल फ्रॉक। यू सी द फर्स्ट वन, दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो फर्स्ट फ्रॉग है गोल्ड फ्रॉग, दैट इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे छोटे फ्रॉग में ये आते हैं। इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर। जो गोल्ड फ्रॉग हैं उनका लेंथ क्या है? 0.9 सेंटीमीटर, उसी के आसपास है ये 0.9 सेंटीमीटर। इट मीन्स इज इट लेस देन 1 सेंटीमीटर और मोर देन 1 सेंटीमीटर? इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। जब तक देखिए यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, ये सब 1 से छोटे हैं। 0 पॉइंट अगर कुछ भी है दैट इज लेस देन 1। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं। गेस हाउ मेनी सच फ्रॉक्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर? आपके जो लिटिल फिंगर में है उसके ऊपर ऐसे कितने फ्रॉक्स बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। 0.9 सेंटीमीटर मीन्स आप सोचिए, आई वॉज शोइंग यू द स्केल। ये देखिए स्केल में दिस इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मच ओनली, बहुत छोटा है। सो इससे भी छोटा है, यानी आपके छोटी उंगली के ऊपर भी एक फ्रॉग आ सकता है, इतना छोटा फ्रॉग है। ठीक है, नेक्स्ट वन बुल फ्रॉग, बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग। बुल फ्रॉग इज द अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग। उसके नाम से ही लग रहा है क्योंकि ये बुल, ठीक है, बुल फ्रॉग है ये उस कैटेगरी के हैं। बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग, इट इज एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर। Again I will show you the scale. You see here, this scale is exactly 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये स्केल देखिए 30 सेंटीमीटर, यानी दिस इज 1 फीट। ये 1 फुट का स्केल है एंड इट इज मोर देन 30 सेंटीमीटर, करीबन 30 के आसपास है, 30.5। एंड हियर यू सी दिस नंबर, हियर यू कैन फाइंड द होल नंबर। दिस इज 30 पॉइंट है और यहाँ डेसिमल पार्ट है। सो यहाँ होल नंबर भी है और डेसिमल भी है। द लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, यानी इस स्केल से भी और लंबा है। ठीक है, करीबन स्केल इतना है। सो यू कैन कंपेयर बोथ द फ्रॉक्स, बुल फ्रॉक एंड गोल्ड फ्रॉक। फर्स्ट वन इज लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज अबाउट 1 फुट। ओके, नाउ some questions are there. You see, what does 0.9 centimeter mean? Is it the same as dash millimeter? अब 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है कितना मिलीमीटर होगा बताइए? 0.9 सेंटीमीटर यानी इट विल बी 9 मिलीमीटर। ये 10 होता तो 1 सेंटीमीटर होता, लेकिन ये 10 से 1 mm कम है, दैट इज 9 मिलीमीटर। सो यू कैन राइट देयर 9 millimeters. We can also say this is 9/10 of a centimeter. राइट, 9/10 ऑफ सेंटीमीटर, ये आपको सीखना है। 9/10 ऑफ सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मैंने फ्रैक्शन भी सीख गया और डेसिमल भी। 9/10 होगा क्योंकि टोटल जो सेंटीमीटर है, जैसे कि सपोज यहाँ से यहाँ जो पूरा ये 10 पार्ट्स है उसमें से बस ये 9 तक जा रहा है, नॉट 10, 9 आउट ऑफ 10। सो द फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन इट विल बी 9 आउट ऑफ 10, 9/10 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर which is written as 0.9 centimeter. And next one, so 30.5 centimeter is the same as dash centimeter and dash millimeter.
30.5 का मतलब क्या है? इट इज़ 30 सेंटीमीटर एंड ये जो डेसिमल पार्ट दैट इज 5 मिलीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है, ठीक है। अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। ये जो बिग फ्रॉग है ये 1 मीटर स्केल में कितना आ सकते हैं? 1 मीटर यानी कितना है बताइए? 1 मीटर इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ एक फ्रॉग का लेंथ है 30.5 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर कितने फ्रॉग्स आएंगे? आप इसको अगर 30 से भी डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 30 30 30 तीन करेंगे 30.5 देन 30.5, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है? ये 5 5 5 15। ओके, इसमें भी देखिए बच्चों आपके डेसिमल की देखिए भी एडिशन में हम सिंपल तरीके से एडिशन कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आप एक गैस करके बताइए। देखिए 30 30 30 तीन होगा तो 90 होगा, 90 और यहाँ समथिंग होगा, थोड़ा सा होगा एक्स्ट्रा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं 3 फ्रॉग्स कैन सीट ऑन 1 मीटर स्केल। इसका एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन है वो हम इस चैप्टर के आगे हम करने वाले हैं। अभी बस मैं आपको गैस करके सोचने के लिए बोल रहा हूँ, बाद में इसको हम एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे या फिर हम एडिशन भी इसका सीखेंगे डेसिमल्स का, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर कितने आएंगे बिग फ्रॉग? 3 ठो आ सकते हैं और थोड़ा सा जगह बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ दे सीट इन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। नाउ छोटे फ्रॉग्स की बारी है, वही 100 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर बैठेंगे और उनका लेंथ क्या है बताइए? 0.9 सेंटीमीटर। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? एक फ्रॉग का लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर एंड टोटल का है 100 सेंटीमीटर, तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 0.9 को हम mm कर देते हैं ताकि इजीली निकल पाएगा। 0.9 सेंटीमीटर इज 9 mm और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को भी हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 सेंटीमीटर यानी 100 into 10 mm and it is yes 1000 millimeter. Now we can find out how many frogs can sit on 1 meter scale. अब देखिए दोनों को हमने mm में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हम 1000 को 9 से डिवाइड करेंगे। 1000 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। यू सी हियर 9 1 सर 9, 1 आ गया, 0 लाएंगे, फिर 9 1 सर 9, 1 आ गया, 0 लाएंगे, 9 1 सर 9, ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। सो इट इज 111 फ्रॉग कैन सिट। द आंसर इज 111, करीबन 111 जो मेढक है इसके ऊपर बैठ सकते हैं 1 मीटर स्केल के ऊपर। हाउ डिड यू फाइंड? हमने क्या किया पहले देखिए, 100 सेंटीमीटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, तो ये आ गया 1000 मिलीमीटर एंड 0.9 सेंटीमीटर इज 9 मिलीमीटर। अब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने फ्रॉग्स उसमें बैठेंगे वो इजीली निकल सकता है। ओके बच्चों, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको जितना भी थोड़ा बहुत जानकारी अभी मिली है आपको समझ में आ गया सेंटीमीटर के और मिलीमीटर के बारे में एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Very soon we will meet with the next video. Thank you all for watching. Keep watching the video, keep learning and keep growing.